So we were going through the next module of our export marketing that is related to FTP. FTP means the foreign trade policy. Foreign trade policy is a policy which is made by government of India for every 5 years. The moment 5 years are getting over, again the government is redrafting the another policy for the next 5 years. So the current policy which we are going through, it started in the year 2015 and ends in the year 2020. Now from 2021 onwards, we may be having the another policy. Government is working on that and the draft is ready. They may make the announcement of the next FTP very soon. But for the time being, in our syllabus, we have to focus only on FTP 2015-20. We understood the history behind that what was FTP known as previously in 2004, or we can say that till 2004, this FTP was known as EXIM policy. EXIM policy means export-import policy. In 2004, government have changed the name from EXIM policy to FTP. Now the FTP which we are having currently, that is 2015-20. Now there are some highlights of FTP. As far as the term highlight is concerned, highlight means the main or most important thing which has been added in this particular policy. As I told you, for 2 consecutive times, Congress government won the election and they ruled India. And the last policy which they left, that was the policy ends on in the year 2014. Then after that, new government came with the new ideas and the new proposals to develop the economy of India and to develop the export marketing in India. So when in 2015, the new economic policy was launched or the new FTP was launched, there they made some changes. And the first and most important change, which was related to this scheme, that is MEIS. The full form of MEIS is Merchandise Exports from India scheme. This you have to memorize, because for 2-3 marks, or you can say that for 5 marks, we will be having abbreviations in the exam paper. Abbreviations means a short form will be given to you and they will ask you the full form of that. So in this chapter, we are going to have maximum abbreviations. So MEIS stands for Merchandise Exports from India scheme. This scheme is a combination of 5 different schemes. Before this 2015, whatever FTP we were having, there was mention of 5 different policies or 5 different schemes. Now what this government has done, they clubbed all these 5 schemes and they made it as one scheme called as Merchandise Exports from India scheme, to make it more convenient, to make it more easy understandable by a common man. See, if I want to start my export business and if I go through the FTP and there are so many schemes, there are so many points, then I will get confused. And then, finally, there may be the situation, I may drop the idea of exporting the goods from India. Why? Because I feel that the contents are very tough. The things are very difficult. I don't know whether I will be in a position to, make that things possible or not. So that fear is always in my mind. But if the things are very clear, explained in a very simple manner, in a very easy manner, then I will be getting some sort of, relaxation. I'll be getting some confidence as well that I will be in a position to do the work. So MEIS is a scheme which is a combination of 5 schemes. The purpose was to make it more simple. And at the same time, they have even increased the reward for that. Now, what this scheme is about, this scheme says that notified goods exported to notified markets would be rewarded ranging from 2% to 5% on realized FOB value of exports or
FOB value realized, whichever is lower. Now this is little complicated to understand. I'm just giving you certain things or certain easy terms for that. Here the word is given notified goods. Notified goods means the things which are mentioned. What government has done under this scheme, they have made list of certain goods. They made highlights of certain goods and they said that these are the goods where this scheme is applicable. इन्होंने एक लिस्ट बनाया, गुड्स का एक लिस्ट बनाया और कहा कि ये जो लिस्ट में गुड्स हैं उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल, तो उसे कहा जाता है नोटिफाइड गुड्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स? नोटिफाइड गुड्स मींस द गुड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द लिस्ट. एंड आगे उन्होंने दिया है एक्सपोर्टेड टू नोटिफाइड मार्केट्स. दैट मींस इन्होंने यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दिया कि ये जो भी गुड्स हैं, अगर ये एक स्पेसिफिक कंट्रीज में जा रहा है, उन्होंने क्या किया, कंट्रीज की भी लिस्ट बना दी, गुड्स की भी लिस्ट बना दी और कंट्रीज की भी लिस्ट बना दी. और फिर ये कहा कि अगर ये चीजें इन पर्टिकुलर कंट्रीज में जाते हैं तो जो एक्सपोर्टर है, जो सेल कर रहा है, उसको 2% से लेके 5% तक का एक बेनिफिट मिलेगा. 2% से लेके 5% का. अब ये 2% 5% किसका रहेगा? FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और FOB वैल्यू रियलाइज्ड. FOB का फुल फॉर्म रहता है फ्री ऑन बोर्ड. याद रखो आप, FOB का फुल फॉर्म रहता है फ्री ऑन बोर्ड. मैं यहाँ पे वो लिख ही देता हूं, दैट विल बी बेटर. सॉरी, फ्री ऑन बोर्ड. इसको अगर आपको सिंपल वर्ड्स में याद रखना है तो मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिख के दे देता हूं आपको. सेलिंग प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स. देखो, जब हमारी चीजें हम लोग फॉरेन कंट्री में बेचने जाते हैं ना, तो हमें एक प्राइस फिक्स करनी पड़ती है कि ये मेरी प्राइस होगी. इसको कहा जाता है FOB प्राइस, और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से द सेलिंग प्राइस. आप एक सेलिंग प्राइस पहले से ही तय करके रखते हो कि ये मेरी सेलिंग प्राइस रहेगी. दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम FOB प्राइस. तो ये आपने खाली फिक्स किया हुआ है, ये प्राइस आपने खाली फिक्स किया हुआ है. पर कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक्चुअल वहां पे फॉरेन मार्केट में बेचने जाते हैं तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो जाती है. सपोज आपने सोचा है कि कम से कम आपको $5 मिल जाएंगे एक यूनिट की. आपने ऐसा सोचा है और आपने फिक्स किया FOB प्राइस, that my FOB price, the minimum free on board price is $5 for 1 unit. लेकिन एक्चुअल वहां पे मार्केट में वो चीजें बेचने गए तो वहां के कस्टमर्स जो है $5 देने को तैयार ही नहीं. They are saying that $5 are very high amount, we can pay only $4, not more than that. वहां की जो सरकार है, जो वहां के लोग हैं, वहां के जो एजेंट्स वगैरह है, उन्होंने कहा कि नहीं, $5 बहुत ज्यादा हो जाता है, $4 में बेचेंगे. तो वो आपका प्राइस कम हो जाता है. FOB जो आपने फिक्स किया था उससे कम हो गया. अब यहाँ पे सरकार क्या बोलता है कि आपने अगर वो चीजें जो हमने लिस्ट में लिखी हैं और उन कंट्रीज में भेजा है जहां पे हमने कहा हुआ है, तो आपकी जितनी भी सेल है ना, उसके ऊपर 2% से लेके 5% तक हम आपको बेनिफिट देने वाले हैं. अब ये कहां पे देने वाले हैं? आइदर FOB वैल्यू व्हिच इज फिक्स्ड बाय द एक्सपोर्टर और एक्चुअली रियलाइज, जो आपको एक्चुअल मिला है उनमें से जो कम रहे. अब जो एग्जांपल मैंने दिया आपको, उसमें एक्सपोर्टर ने प्राइस कितना फिक्स किया? $5 प्राइस फिक्स किया और एक्चुअल में रियलाइज कितना हुआ? $4 रियलाइज हुआ. तो रियलाइज वैल्यू $4 कम है ना. तो जब सरकार बेनिफिट कैलकुलेट करेगी ना कि इसको कितना रिवॉर्ड देना है, कितना उसको इंसेंटिव्स देना है, तो बोलेंगे कि हम लोग $4 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे. जितनी भी सेल, $4 में एक यूनिट है, फिर आप देखेंगे कितने यूनिट सेल हुए. हो सकता है 1000 यूनिट सेल हो गए, हो सकता है 1 लाख यूनिट सेल हो गए, क्योंकि एक्सपोर्ट का सेल ज्यादा होता है, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल होती है. तो फिर जो अमाउंट आता है उसका 2% से लेके 5%, वो जो लिस्ट बनाई है ना गुड्स की, वहां पे उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि कौन सी चीजों के ऊपर 2% मिलना है, कौन सी चीजों के ऊपर 3% मिलना है, कौन सी चीजों के ऊपर 4% और 5%. इस तरह से उन्होंने बना के रखा हुआ है.
तो आपको वो चीज सरकार को प्रेजेंट करना है दैट यू नो व्हाट यू आर सेलिंग दीज गुड्स एंड यू आर डिजर्विंग यू नो दिस मेनी परसेंटेज ऑफ द रिवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और फिर आपको वो सारी चीजें दे देनी है कि मैंने प्राइस इतना फिक्स किया था और एक्चुअल मुझे इतना मिला है, देन गवर्नमेंट विल टेक इट। ओके, तो ये जो आपका बेनिफिट है, दिस बेनिफिट टू बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के फॉर्म में आएगा। Whatever reward you are going to get, it will be in the form of duty credit script. Duty credit script means they will not give you the cash. They will not give you the cash. For example, I am selling certain goods. मैं कुछ goods बेचता हूं जो उस लिस्ट में है और उसके ऊपर 5% का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। 5% मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, रियलाइज वैल्यू जो कम था वो 1 लाख रुपए है। सो फॉर 1 लाख 5% ऑफ 1 लाख विल बी 5,000 रुपीज। 1 लाख रुपए के पीछे मुझे 5,000 रुपीज का रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये मतलब नहीं कि मुझे वो कैश में मिलेगा। व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट विल डिपॉजिट 5,000 रुपीज इन माई अकाउंट। मेरा एक अकाउंट रहेगा सरकार के पास, वहां पे वो 5,000 क्रेडिट करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। उसको टाइटल दे देंगे ट्रांजैक्शन को, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। दैट मींस इन फ्यूचर जब मैं कोई चीज फॉरेन से इंपोर्ट करूंगा तो मुझे गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। इंपोर्ट के ऊपर बहुत महंगा पड़ जाता है, मुझे चीजें देनी पड़ेगी। तो समझो मैंने कोई चीज मंगवाई वहां से और टोटल मुझे 10,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना है टैक्सेस उसके ऊपर। तो मुझे गवर्नमेंट क्या कहेगा कि हिंदुजा तुम्हें 10,000 देना है, पर 5,000 रुपीज ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में हमने जमा करके रखा है। तुमने जो पहले सेल किया था ना 1 लाख रुपए का, उसका 5% हमने ड्यूटी स्क्रिप्ट तुम्हें दिया हुआ है। सो अभी आप सिर्फ अपना 5,000 रुपीज का अमाउंट दे दो आउट ऑफ 10,000। मुझे टोटल कितने देने थे? 10,000 देने थे ना। तो अभी 10,000 की जगह पे मैं सिर्फ उनको 5,000 दूंगा। क्यों 5,000 दूंगा? क्योंकि उन्होंने मुझे रिवॉर्ड दे दी। I hope you are understanding the example. This is a scheme. Have you understood this example? See over here, I have to sell the goods whatever are listed or notified goods in the notified country. I have to submit all my records to the government that see I have sold and I have brought that much foreign currency in India. Then government will calculate 2% to 5% amount and that will be given or credited in my account and that will be called as duty credit script. ठीक है, वो duty credit script रहेगा and that will be adjusted in my future transaction of import duties and all with the government. Right? तो ये हो जाएगा मेरा merchandise export from India scheme. Now after that what they are saying that, one second, I'll just, it is proposed to give higher level of rewards under MEIS to products with high domestic content and high value addition as compared to the products with high import content and less value addition. That means now they are saying that we will give higher reward to the goods which are having high domestic content. मतलब जो ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है ना, जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है वो चीजें इंपोर्टेड मटेरियल से बनाता। आर यू गेटिंग द थिंग्स? मेरा एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और वो चीजें मैं फॉरेन कंट्री में बेचता हूं, पर जो मेरी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग चलता है उसका जो मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। मैंने बाहर के कंट्री से मटेरियल खरीदा, उनको मैंने बनाया, गुड्स बना दिए और फिर उसको मैंने बेच दिया बाहर। तो अगर मेरे गुड्स ऐसे हैं जहां पे डोमेस्टिक कंटेंट नहीं है तो मुझे कम प्रॉफिट मिलेगा, कम मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंडिया का ही रॉ मटेरियल यूज करता हूं
और उसकी वैल्यू काफी बढ़ा के मैं फॉरेन मार्केट में दे देता हूं, तो मुझे ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये स्कीम उन्होंने क्यों ये इंट्रोड्यूस किया? बिकॉज दे वांटेड टू प्रोमोट दी डोमेस्टिक कंटेंट। वो गवर्नमेंट ये चाहता है कि जो भी एक्सपोर्टर चीजें बनाता है, मैक्सिमम चीजें इंडियन रॉ मटेरियल से बनना चाहिए, तो हमारी मतलब यूटिलाइजेशन हो जाती है ना रिसोर्सेज की। सो ये मर्केंटाइज एक्सपोर्ट स्कीम ये कहलाता है। आई होप आपको इसका हाईलाइट समझ आएगा, आपको ब्रीफ में समझ आ गई मीनिंग। What is MEIS? MEIS stands for Mercantile Exports from India scheme. Okay, now let us understand what are the goods which are included as notified goods. Notified goods and under MEIS, we are having agricultural and village industry product, उनको उन्होंने कंसीडर किया हुआ है as the notified goods. Then eco-friendly and green products, labor-intensive products. Labor-intensive products में जहां पे लेबर की मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। अगर लेबर कई कुछ बातें ऐसी रहती हैं यहाँ पे लेबर का रोल बहुत कम रहता है, मतलब थोड़ी देर में लेबर अपना काम खत्म करके चला जाता है। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि वो चीजें बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा लोगों की मेहनत होती है। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा लेबरर को अपॉइंट करते हो, इफ योर प्रोडक्ट्स आर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, देन दैट विल बी नोटिफाइड गुड्स। ऐसी चीजें जब आप बाहर के कंट्रीज में बेचोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये रूल क्यों लाया गया? ताकि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। से अगर मैं ऐसी चीजें पहले नहीं बनाता था, ठीक है, लेकिन जब मुझे पता चला कि अरे गवर्नमेंट ना मुझे रिवॉर्ड देगी अगर मैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, तो मैं ऐसी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। तो मेरे फोकस करने से क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रहे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने मुझे फोर्स किया कि इन लोगों को भी काम दे दो, और अगर इनको काम दे दिया तो हम आपकी प्रोडक्ट को नोटिफाइड गुड्स में डाल देंगे और आपको रिवॉर्ड भी देंगे। तो ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन नोटिफाइड गुड्स। Then industrial products, of course, that is there. High-tech products, pharma products, that means some medicines, leather goods, steel products, wooden products, etc. ये सारी जो भी चीजें जो भी उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, अगर आप ये बिजनेस करते हो तो आपको MEIS स्कीम में बेनिफिट मिल जाएगा, right? These are the notified goods. Notified goods, list of goods which are mentioned under this particular scheme. And then after that they are giving the names of the notified countries. ये कौन-कौन से नाम उन्होंने दिए हुए हैं? The main countries are included under notified markets are Europe, USA, Canada, African countries, Latin American markets, Asian markets, Japan, South Korea, ताइवान, चाइना एक्सेट्रा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां की इकोनॉमी अच्छी है। दैट मीन्स आपका लॉस नहीं हो रहा है। अगर आप बेचेंगे ना वहां पे तो आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो ये और भी इंकरेज करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने आपको और इंकरेज किया कि आप ये चीजें बना दो और ये चीजें इन कंट्रीज में बेचो, तो आपको MEIS का बेनिफिट मिल जाएगा। और इंडिया में ये स्कीम आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना जो प्रोडक्ट था वो चेंज कर दिया। They started manufacturing the goods which are there in this list to get the benefit of MEIS, and really they are getting benefit. Because every now and then these exporters are importing some material from foreign countries. So whatever taxes and duties they are supposed to pay to the government, they are getting discount on that. हम लोगों को कैसे जैसे कैशबैक ऑफर मिल जाता है, मतलब आपके नाम पे कुछ इनसाइडर पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, फिर जब आप नेक्स्ट परचेजिंग करते हो तब आपको उतने पैसे कम भरने पड़ते हैं। तो ये सेम चीज यहाँ पे उन्होंने एक्सपोर्टर को भी दे दी, पर हम लोगों को जो डिस्काउंट मिलता है वो 100 या 1000 में रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। इनको करोड़ों में फायदा हो जाता है, मतलब एक ह्यूज अमाउंट का बेनिफिट एक्सपोर्टर को मिल जाता है, एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन दिस। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती हैं, हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है,
हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें इस पॉलिसी में उन्होंने ध्यान से दिया हुआ था। ओके, सो विद दिस फर्स्ट पॉइंट of MEIS is over, and we shall continue with the next scheme in our next video. So I just stop sharing the screen at this point.